ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کلاس روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ چلتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ آئے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنک نالج۔ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآنک نالج میں آج ہم کون سی سورت کے حوالے سے سنتے ہیں۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، آج قرآنک نالج میں ہم جس سورت کے بارے میں سنیں گے وہ سورت کا نام ہے سورہ شورى۔ کیا نام ہے؟ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ شورى۔ اچھا بچوں، یہ جو سورت ہے قرآن پاک کی سورہ شورى، یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 25 میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ آپ بتائیں کون سے پارے میں ہے؟ 25۔ جی، قرآن پاک کے پارہ نمبر 25 میں ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی میننگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ سورہ شورى کا نام شورى کیوں رکھا گیا اور شورى کی میننگ کیا ہے۔ جی پیارے بچوں، چلیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سورت کا نام شورى کیوں ہے۔ جی تو پیارے بچوں، شورى کی میننگ ہے مشورہ کرنا۔ مشورہ کرنا کون بتائے گا؟ مشورہ کرنے کی کیا معنی؟ مشورہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ آپس میں بات چیت کرنا، ڈسکس کرنا، کسی بات پہ کسی کی رائے لینا، جیسے ہمیں کوئی کام کرنا ہے، کسی کی رائے لینا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے کہ کسی سے مشورہ کر لیں۔ تو شورى کی میننگ کیا ہے؟ مشورہ کرنا، اور مشورہ کرنا یہ شورى کی میننگ ہے۔ اور یہ لفظ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں آیا ہے۔ یہ لفظ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کی یہ خوبی بتائی گئی ہے کہ مسلمان آپس میں کام مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ مشورہ کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ مشورہ کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت بھی ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ مشورہ کرنا ہمارے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج جو ہم نے سورت سنی، سورہ شورى کے بارے میں سنا، سورہ شورى کی میننگ سنی اور اس کی وجہ بھی سنی کہ میننگ، اس کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کی ایک خوبی بتائی گئی ہے۔ اس میں مسلمانوں کی کیا بتائی گئی ہے؟ ایک خوبی بتائی گئی ہے۔ وہ خوبی کون سی ہے؟ کہ مسلمان جب بھی کوئی کام کرتے ہیں مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو آج ہم نے باتیں سنی اسے یاد بھی رکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نہ سنیں۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلتے ہیں اپنے حسین بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ آج ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واہ بھائی، یہ تو پیارے بچے انشاءاللہ جھوم جھوم کے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں نعت شریف کی طرف، تو تیار ہیں نعت شریف سننے کے لیے؟ جی سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، باہر لوٹے گیہوں کروں کی، باہر لوٹے گیہوں کروں کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، باہر لوٹے گیہوں کروں کی، دلوں میں دامن بنا بنا کر، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بنوا کو ہر جگہ سے، وہ بنوا کو ہر جگہ سے سوازتے ہیں بولا بولا کر، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن اول نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطا ہے میری چھپا چھپا کر، بولو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، بولو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ حسین بھائی ہمیں نعت سنا رہے تھے، بہت پیاری نعت تھی، بہت آسان نعت تھی۔ اس میں کچھ معنی تو آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، کچھ مشکل الفاظ ایسے بھی ہیں جو شاید نہیں سمجھ میں آئے ہوں، تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں پہلا لفظ تھا دیار نبی، اس کی میننگ کیا ہے؟ شہر نبی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مبارک، اور وہ کون سا ہے؟ مدینہ پاک، مدینہ شریف، مدینہ پاک۔ تو یہاں دیار نبی سے کیا مراد ہے؟ مدینہ پاک، مدینہ پاک مراد ہے۔ اچھا، اس کے بعد ذکر ہوا لب پر سجا سجا کر، اس کی میننگ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ یعنی پڑھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سجا سجا کے مطلب ایک خوبصورت الفاظ ہے، لب پر سجا سجا کے مطلب پڑھتے ہوئے۔ ایک اور جگہ ذکر ہوا بہاریں، یعنی برکتیں،
बहारें मतलब बरकतें। बरकतें। एक और जगह जिक्र हुआ करम। करम। करम की मीनिंग कौन बताएगा? बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत कलामों में हम सुनते हैं करम। करम मीनिंग है मेहरबानी। क्या है? मेहरबानी। अच्छा, सखी का तो सबको पता होगा। सखी किसको कहते हैं? सखी की तो पता होगी ना। सखी, सखावत। सखी वो होता है जो सखावत करने वाला होता है। सखावत मतलब देने वाला, सबको बांटने वाला। गनी की मीनिंग कौन बताएगा? जी, जिसके पास बहुत कुछ हो। जिसके पास बहुत कुछ हो। बिल्कुल सही, आपका जवाब दुरुस्त है। जिसके पास बहुत कुछ हो और वो बांटता हो, उसे क्या कहते हैं? गनी। जी, ये गनी भी हमारे शेर में यूज हुआ था। नवाजना, नवाजना मतलब तो पता है ना? जी खलील भाई। देना। जी, नवाजना मतलब देना। देना मतलब अता करना, नवाजना, ये सब एक ही उसमें आ जाता है ना। माशाल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त है। हुस्ने अमल, अमल कहते हैं कोई काम, अमल करते। नेक काम। हुस्ने अमल मतलब नेक काम। एक काम। अच्छा, एहसान मतलब मेहरबानी करना, किसी पर एहसान करना। जी। खताएं तो सबको पता है। खताएं मीनिंग्स गलती करना, मिस्टेक्स। जैसे मैं कुछ टेस्ट कर रहे हो तो गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? खताएं, उर्दू में। माशाल्लाह। तो आप लोगों को कुछ मीनिंग बता दी, कुछ मैंने बता दी। इस तरह जब भी नात सुने तो कोशिश करें उस नात को समझने की। समझ के जब सुनेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। मीनिंग समझने की। अपने बड़ों से पूछ लें, अपने टीचर्स से पूछ लें, तो इसमें आपको नात सुनने में मज़ा भी आएगा और उसकी बरकतें भी मिलेंगी इंशाअल्लाह। जी, याद भी हो जाएगी। मीनिंग आती होगी तो नात याद भी हो जाएगी। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलने से पहले हम एक मर्तबा मदनी मकसद दोहरा लेते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आज का सबक। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ और देखते हैं कि आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे। जी, तो पेज नंबर 36 निकाल लें। 36 उर्दू में कहते हैं 36, तो पेज नंबर 36 यानी 36 निकाल लें। सबने निकाल लिया? सबने निकाल लिया? माशाल्लाह। तो चलते हैं अपने सीधे हाथ की तरफ से। मैं चाहूँगा कि मेरे सीधे हाथ पे जो मौजूद हैं अहमद रज़ा, तो अहमद रज़ा आप पहला सवाल पढ़ें, उसका जवाब भी दें। इसी तरह फिर अहमद रज़ा के बाद हामिद रज़ा दूसरा सवाल पढ़ेंगे, सवाल का जवाब भी देंगे। फिर खलील भाई तीसरा सवाल और उसका जवाब, और फिर गुलाम मुस्तफ़ा फिर चौथा सवाल और उसका जवाब देंगे। हमारे सबक की जो हेडिंग है वो है नमाज। तो नमाज के बारे में आज सवाल सुनेंगे और देखते हैं कि आज हमारा सबक में कौन कौन से सवाल आते हैं और क्या जवाब आते हैं। जी, क्या मदनी मुन्नों को नमाज पढ़नी चाहिए? जी, मदनी मुन्नों को भी नमाज पढ़नी चाहिए। क्या मदनी मुन्नों को भी नमाज पढ़नी चाहिए? जी हाँ, मदनी मुन्नों को भी नमाज पढ़नी चाहिए। जी, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। नमाज की कितनी शराइत हैं? नमाज की 6 शराइत हैं। जी, नमाज की कितनी शराइत हैं? नमाज की 6 शराइत हैं। जी, खलील भाई की तरफ चलते हैं। नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। जी, फजर की नमाज में कितनी रकातें हैं और कौन कौन सी हैं? फजर की नमाज में 4 रकातें हैं, 2 सुन्नत मुअक्कदा, 2 फ़र्ज़। फजर की नमाज में कितनी रकातें हैं और कौन कौन सी हैं? फजर की नमाज में 4 रकातें हैं, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात फ़र्ज़। जी, तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सबक जो हमने सुना। नमाज के बारे में हमने सवालात सुने, उसके जवाबात भी सुने। तो कोशिश कीजिए कि इसको याद भी रखें और इस पर अमल भी करें। जी, तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सबक जिसपे हमने नमाज के बारे में सुना। नमाज के बारे में हमने ये भी सुना कि मदनी मुन्नों को नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज की कितनी शराइतें हैं, नमाज की कितनी फ़राइज़ हैं, फ़जर की कितनी रकातें होती हैं। फ़जर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा होती हैं और 2 रकातें फ़र्ज़ की होती हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दुआ। क्या नाम है? दुआ। जी, क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी, तो प्यारे बच्चों, आज हम जो दुआ सीखेंगे शायद हो सकता है कि आप में से किसी को याद भी हो, इसलिए कि वो बहुत ही आसान दुआ है, बहुत ही
आसान दुआ है। प्यारे बच्चों, कभी ऐसा होता है कि हम पे कोई बच्चा हम पे कोई एहसान कर देता है जिसका हमें उसका शुक्रिया अदा करना होता है, या कभी ऐसे मौके आते हैं जब हमें किसी का शुक्रिया अदा करना होता है। तो आज जो हम दुआ सुनेंगे वो है शुक्रिया अदा करने के बारे में, कि कभी भी किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो उसे कौन सी दुआ देनी चाहिए, कौन सी दुआ ऐसी है जो हम दें तो उसका शुक्रिया भी अदा हो जाएगा और उसके हक में दुआ भी हो जाएगी। तो वो दुआ है जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपको अच्छा बदला अता फरमाए। अल्लाह आपको अच्छा बदला। कौन बताएगा कि ये दुआ किसको पहले से याद थी? देखिए माशाल्लाह सबको ही याद थी, मगर ये है कि अब कोशिश करें जो आज हमने दुआ सीखी अब इस पर इम्प्लीमेंट करें, इस पर अमल करें कि जब भी किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो उसे क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाहु खैरा, यानी अल्लाह आपको अच्छा बदला अता फरमाए। एक एक मर्तबा ऐसा करते हैं, सबसे सुन लेते हैं जी। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी दोहरा लें, जज़ाकल्लाहु खैरा, यानी अल्लाह आपको अच्छा बदला अता फरमाए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाने से पहले हम एक काम करते हैं, वो ये कि नारे लगाते हैं। क्या करते हैं? नारे लगाते हैं। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, मुआविया और अली जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। तो आइए बच्चों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी तो प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट है बच्चों के सवालात। बच्चों के सवालात में हमारे पास दो टीमें मौजूद हैं, एक टीम मक्की है और एक टीम मदनी है। टीम मक्की में जो मौजूद हैं उन्हें एक एक पर्सन आकर, एक बच्चा आके यहाँ पर इस पर्ची में से एक सवाल निकालेंगे। अगर वो सवाल होगा तो आपने वो सवाल टीम मदनी से करना होगा और टीम मदनी ने उसका जवाब देना होगा। अगर पर्ची में इशारा आता है तो वो इशारा आपने करना होगा और टीम मदनी ने उस इशारे को पहचानना होगा। अगर सही जवाब दिया इन लोग ने तो 1 नंबर हो जाएगा। जी, अगर सही जवाब दिया तो इनको 1 नंबर मिलेगा। अच्छा, इस सेगमेंट में थोड़ी चेंजिंग लाते हैं। वैसे तो हमारे पास बच्चे खुद आते थे चल के, आज मैं एक काम करता हूँ कि मैं पर्चियाँ आपके पास खुद ले आता हूँ और हर किसी के पास एक एक पर्ची रख देता हूँ। उस पर्ची को आपने इनसे करना है और इनके पास जो पर्ची आएगी आपने इनसे सवालात करने होंगे। मगर अभी नहीं, पहले सब पर्चियाँ अपनी अपनी ले लें। ये हो गई आपकी पर्ची और ये आपकी और ये आपकी। आपने सवाल करना है इनसे और आपने सवाल करना है इनसे, फिर आप सवाल करेंगे इनसे और ये सवाल करेंगे इनसे। सही। अब चलते हैं और देखते हैं। मेरे पहले सवाल करेंगे मेरे सीधी तरफ जो हैं हमारे अहमद रज़ा भाई जी। तो आप करें सवाल। टीम मदनी से क्या सवाल कर रहे हैं आप? पता है मुसलमान रबीउल अव्वल में इन नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश यानी बर्थ की खुशियाँ बनाते हैं। जी खलील भाई जवाब दीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशियाँ मनाते हैं। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी इनका जवाब दुरुस्त है। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी मेरा आपसे सवाल ये है, उल्टे हाथ से खाना किसका तरीका है? शैतान। आपका जवाब दुरुस्त है। जी, उल्टे हाथ से खाना किसका तरीका है? उल्टे हाथ से खाना शैतान का तरीका है। उल्टे हाथ से ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना कोई चीज़ लेनी चाहिए, ना कोई चीज़ देनी चाहिए। हमेशा अपनी आदत बनाएं कि हर काम सीधे हाथ से करें। सही है। अब चलते हैं टीम मदनी की तरफ और देखते हैं कि टीम मदनी टीम मक्की से क्या सवालात करती है। जी खलील भाई सवाल कर रहे हैं। बताएं कुरान में अल्लाह पाक ने मुसलमानों का दुश्मन किसे कहा है जो इन्हें बुरे काम का कहता है? बताएं कुरान पाक में अल्लाह पाक ने मुसलमानों का दुश्मन किसको कहा है जो इन्हें बुरे काम पर उभारता है? शैतान।
क्या आपका कहते हैं जवाब खलील भाई? बिल्कुल दुरुस्त है। जी, तो इनका जवाब दुरुस्त है। अब चलते हैं गुलाम मुस्तफ़ा की तरफ और देखते हैं गुलाम मुस्तफ़ा क्या सवाल कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा रोजाना 5 नमाजें पढ़े तो बताएं 12 दिन में कितनी नमाजें हो जाएंगी? इन्होंने सवाल किया है, अगर कोई बच्चा दिन में 5 नमाजें पढ़ता है, दिन में कितनी नमाजें फर्ज है मुसलमानों पर? 5। अगर कोई बच्चा दिन में 5 नमाजें पढ़ता है तो 12 दिन में कितनी नमाजें हो जाएंगी? यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 12। जी 50। चले मैं आपकी हेल्प करता हूँ। 5 10 जा क्या होता है? 5 10 50। 5 10 जा 50, 5 11 जा 55। और 5 12 जा 60। 60, 60। जी, तो इनका जवाब क्या है? 60। 60। जी, तो इनका जवाब इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, तो इनका जवाब दुरुस्त है। जी, तो प्यारे बच्चों, ये थे बच्चों के सवालात और बच्चों के सवालात खत्म हुए। इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। अगर किसी से हमारा प्रोग्राम मिस हो गया या उसने पूरा प्रोग्राम नहीं देख सका तो घबराने की कोई बात नहीं है। किड्स मदनी चैनल के नाम से चैनल मौजूद है, उसको सब्सक्राइब भी करें, उसकी दावत आम भी करें। क्यों? क्योंकि हमारा मदनी मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस मदनी मकसद के तहत आप हमारे प्रोग्राम्स को आगे शेयर भी करें और उसको फैलाएं भी, क्योंकि इसमें दीन की बातें होती हैं और नेकी की बातें होती हैं। जज़ाकल्लाहु ताला खैरा व अहसनुल जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया